तो टाइम वेल्थ की पूरी समरी है, जिनका अभी अभी तक थोड़ा भी मिस हो गया है तो अभी थोड़ा और कवर हो जाएगा। जी, तो यहाँ से कौन रीड करना चाहेंगे? एनी नेक्स्ट पर्सन कोई? राजेश जी आप? चलिए मैं ही पढ़ लेता हूँ। एक्चुअली आई हैव जस्ट स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक दिस मॉर्निंग ओके। with another group of readers हम्म। with a different kind of intention. I believe you are aware of it now, as I've shared it in my group. ओके। So let's see how it works. So let me read it out. So summary of time wealth. Time wealth overview. The big question: how many moments do I have remaining with my loved ones? Three pillars of time wealth: awareness, an understanding of the finite, impermanent nature of time, then attention, the ability to direct your attention, rather direct my attention and focus on the things that matter and ignore the rest, and control, the freedom to own my time and choose exactly how to spend it. The time will score. For each statement below, they respond with 0, you strongly disagree, and 1 disagree to neutral, 3 agree, and 4 strongly agree. Okay, let's do this. और काउंट भी करते जाते हैं. So I have a deep awareness of the finite, impermanent nature of my time, and its important is my most precious asset. ओके, स्ट्रांगली एग्री शायद मैं नहीं करूंगा इस पे, ऐसा अभी तक है नहीं, लेकिन एग्री लेवल पे तो है ही. सो 3 फॉर मी. आई हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ the 2 to 3 most important priorities in my personal and professional lives. Yes, I'm 4 in this, 1 2 3 4. ठीक है. Followed by I am able to consistently direct attention and focus to the important priorities that I have identified. No, I won't say that. For me, it is 3, 1 2 3. Agree, not strongly agree. Followed by, अच्छा मैं ही पेज डाउन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ नीचे क्यों नहीं जा रहा है. Okay. So I rarely feel too busy or scattered to spend time on the most important priorities. I rarely feel too busy or scattered to spend time on most important priorities. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है I'm at 1. So I'm just adding 1 to it. I don't really feel too busy. So I rarely feel too busy. नहीं, ये झूठ बोलूंगा, अगर मैं 1 पे रहूंगा तो ही सच होगा मेरे लिए. And I'm in control of my calendar and priorities. I would say neutral, 0 1 2 2. So my baseline score is on a 0 to 20, so I'm at 14, 12, 13. I'm at 13. ओके। ये एक ऑनलाइन क्विज के फॉर्म में भी दिया हुआ है इनकी वेबसाइट पर। तो इसका लिंक शुरू के चैप्टर्स में आया था, हमने ग्रुप में शेयर भी किया था वो। तो ऑनलाइन भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं सभी। Okay. जल्पना जी। So goals, anti-goals, and systems. Use the goal setting framework to calibrate your time wealth compass. Goals. What time wealth score do you want to achieve within 1 year? What are the 2 to 3 checkpoints that you will need to hit on your path to achieve this score? अच्छा, ये जो टाइम वेल्थ स्कोर की बात है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस 5 क्वेश्चंस ओनली, राइट? और सब में स्ट्रांगली एग्री करना है, ऐसा कुछ? नहीं, इसमें कुछ और क्वेश्चंस डिटेल में और भी दिए हैं। ओके, ठीक है, लेट्स कैरी ऑन. हम्म। So what are the 2 to 3 checkpoints that you'll need to hit on your path to achieve this goal? Anti-goals. What are the 2 to 3 outcomes that you want to avoid on your journey? Okay. And high leverage systems. What are the 2 to 3 systems from the time wealth guide that you will implement to make tangible compounding progress towards your goal score? Okay. देखते हैं. So your 1 week jumpstart. Use the energy calendar technique for 1 week. पिनाकी भाई, हाँ. वो सेकंड वाला एक बार एंटी गोल्स एंटी में गोल भी। ना. हाँ। हाँ, एंटी गोल में भी इसलिए रुक गया था. तो
लेकिन हमने एनएलपी किया ना, तो हमें पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत. सो व्हाट हम्म आर द 2 to 3 आउटकम्स दैट यू वांट टू अवॉइड ऑन योर जर्नी. मतलब आपने पहले से कुछ आउटकम क्रिएट किया था व्हाइल सेटिंग अप द गोल, एंड दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू डिस्कवर्ड के इन आउटकम्स की मुझे कुछ खास जरूरत नहीं है, सो आई कैन अवॉइड. थोड़ा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से बताएंगे क्या? एक एक आउटकम हो सकता है लोगों को दिखाना हम्म कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप जैसे हमारे 26 जनवरी और 15 अगस्त का प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं, आप मेरे दिमाग में घूमता रहता है मैं भी किसी दिन करूंगा. तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में इसलिए घूमता है कि लोगों को दिखना चाहिए कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, नीरज भैया सिर्फ एक बंदा नहीं है जो ये करता है. तो वो वाला हो गया वन ऑफ द आउटकम, कि लोगों को देखे कि यार पिनाकी भी कर सकता है, कौन सी बड़ी बात है. इट्स नॉट, अगर नीरज कभी नहीं है तो पिनाकी को भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक दैट. सो दिस कुड बी दैट वन ऑफ द आउटकम्स, लोगों को दिखाने कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, देखो कभी मेरे बारे में भी आप सोच सकते हो, है ना. तो उसकी ओके, जरूरत मोस्टली, मुझे लगता है दे आर इगोसेंट्रिक आउटकम्स. और भी हो सकता है, और भी अलग अलग इसमें तरीके. ऑथर ने ये भी बोला था, जैसे कि कई बार क्या होता है कि गोल्स को अचीव करने के कुछ बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि बर्नआउट या लोनलीनेस, या कोई हमसे जेलस कर रहा है, कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग आ जाती है. तो एंटी गोल्स ये हो सकता है कि मुझे बर्नआउट नहीं आने देना है, मुझे कंपटीशन नहीं आने देना है, जेलसी नहीं आने देना है. तो ये हमारे एंटी गोल्स हो सकते हैं कि मतलब ये मुझे अवॉइड करना है. ये तो मतलब बहुत इसकी ब्यूटीफुल जरूरत है। नहीं है. हम्म. ये तो ब्रिलियंट. कई बार, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम्म एक्चुअली. मतलब कि मैं किस कीमत पे नहीं चाहता ये सक्सेस, वो हमारे. राइट राइट। फॉर मतलब एग्जाम्पल मैं आई कैन कैच माई सेल्फ राइट नाउ, लाइक राहुल कह रहा था कि कौन पढ़ना चाहता है बोलो. तो मैं सोच रहा हूँ चलो कोई और पढ़े, मैं तो बस देखने के लिए बैठा हूँ, सुनने के लिए बैठा हूँ, है ना. अगेन देन सेकंड थॉट केम माइंड, माई माइंड, अच्छा मैं जब पढ़ूंगा मैं तो अपने तरीके से पढ़ूंगा, बहुत एक यूनिक स्टाइल में, तो वो लोगों को इम्प्रेस करेगा. तो ना व्हाट इज हैपनिंग कि लोग इम्प्रेस करे ना करे, खुद तो इम्प्रेस्ड होना जरूरी है ना. वो इम्पोर्टेंट, लाइक वो आउटकम ज्यादा जरूरी है, दैट एम आई इम्प्रेस्ड विद वॉट एवर आई एम रीडिंग फॉर माई सेल्फ, है ना. तो मेरे लिए तो ये पिनाकी भाई, ये जो सेकंड वाला, मतलब डे बाय डे मैं तो कैसे सोच रहा हूँ चीज़ों को ना, हम्म. कि मतलब कैसे मैं डे बाय डे और हम्बल बनूं, ठीक है, और मोर मोर ह्यूमन काइंड ऑफ चीज़ें मेरे अंदर आए, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ें इसमें ही कवर होती हैं सेकंड में ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है घुमा फिरा के ईगो, हम्म कर अपने ईगो देखो, अपने अटैचमेंट देखो, हम्म। है ना. आप, क्योंकि वो भी कभी कभी क्या हो जाता है ना, एज ए आउटकम बन जाता है कि देखो आई डिड इट, है ना. कम से कम दो चार लोग क्लैप तो करे, को ग्रुप में एक मैसेज डालूं तो दो चार लोग थंब तो दिखाए, है ना. नहीं तो क्या यार. यस. हाँ कभी। लोग हाँ समझते क्यों नहीं है, हाँ। लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते. मैं किसके लिए कर रहा हूँ, अभी ये लुकिंग जैसे फॉर इतने एंडोर्स. इतने प्रोग्राम स्टेज पे लोग आते हैं ना, जब हम वो दिया जलवाते हैं ना, तो हम तो यही सोच के कि सब अच्छे, कुछ कुछ लोगों को बुलाते हैं मेन मेन। उसमें भी लोगों में भाई इसके हाथ में इसको मिला है नहीं मिला है, कुछ लोग आगे आना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई हम भी, हमारा भी जब न्यूज़पेपर में आए तो जरा हम भी दिखे कि हम भी कोई थे वहां पे। तो मेरे मेरे को लगता है कि ये सब चीजें भी जिस दिन हमारे अंदर से मिट जाएंगी ना, कि हम पीछे भी खड़े हैं तो भी ओके हैं, आगे खड़े हैं तो भी ओके हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें और आगे बढ़ाएंगी। वेरी गुड, थैंक यू। गुड, सो लेट्स प्रोसीड. मैंने सो इसको फिर उसके चक्कर में, ये तीसरे को मैं सुना नहीं था एक्चुअली ज्यादा, हाई लेवल, हाई लेवरेज हाई लेवरेज सिस्टम। ये भी सिस्टम्स. इंटरेस्टिंग हाँ है. हाँ। हाँ. Like what are the 2 to 3 systems from the time wealth guide that you will implement to make tangible compounding progress towards your goals को. मतलब कुछ ऐसे चीजें होंगे जो आपका प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा विदाउट योर इंटरवेंशन. So if anything which is automating your score without your intervention, वो आपके लिए हाई लेवरेज सिस्टम ही हो गया ना. मतलब आपका, आपको होने के ना, आपका ना होने के वजह भी आपका
क्या बोले मतलब? जैसे इसमें मैं शेयर कर सकता हूँ कुछ एग्जांपल। जैसे इसमें एक बात तो ये समझने की है कि ऑथर ने ये कहा है कि 12 सिस्टम्स उन्होंने बताए हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे करने हैं। कई लोग इतने रिलीजियसली सारी बुक्स पढ़ते हैं कि वो इस बात के गिल्ट में आ जाते हैं कि ऑथर ने जो कहा है वो हम क्यों नहीं कर रहे। हम्म। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ऑथर जो कह रहा है वो उसका पर्सपेक्टिव है। और ऑथर ने तो क्लियरली कहा है कि मैंने आपको 12 सिस्टम दिए हैं, आपको जो दो तीन अच्छे लग रहे हैं आप ले लो, और जो आपके कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हम्म। लिए टाइम ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। मतलब जब मैंने पोमोडोरो को करना शुरू किया, मेरी प्रोडक्टिविटी विद इन 1 मंथ 3 टाइम्स हो गई थी। मतलब आई कुडंट बिलीव कि इतना मैं कर सकता हूँ। मतलब इतना फोकस हो गया था कि मुझे डर लगने लगा कि मैं इतना फोकस क्यों हो गया, कैसे हो गया, कुछ हो ना जाए, इतना फोकस होना सही नहीं है। मैंने कहा एक थॉट भी कुछ और आ ही नहीं रहा, फोकस ही फोकस हो गया, सब कुछ फोकस की बाढ़ आ गई। तो तो इतना फोकस हो गया सिर्फ एक सिस्टम की वजह से। जस्ट टाइम ब्लॉकिंग एंड पोमोडोरो, नथिंग एल्स। वो तो कह रहे हैं दो तीन ले लो आप, तो थोड़ा बीच बीच में चेंज करते रहो तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से कोई भी दो तीन आप ले सकते हो। और जो ये है ना, ये टेम्पलेट है बेसिकली इनका। और हर तरह की वेल्थ के लिए आपके पास बिग क्वेश्चन आएगा। हर एक वेल्थ के लिए 3 पिलर्स आएंगे। हर एक के लिए आपके पास इस तरह से क्विज आएगा स्कोर करने के लिए। हर एक वेल्थ के लिए गोल्स एंटी गोल्स और सिस्टम्स आएंगे। तो ये टेम्पलेट है हमारा पूरा। जी। ओके। सर जी सर बताइए। ये जो तीन आपने उधर बीच में पॉइंट पढ़ा ना, अवेयरनेस, अलर्टनेस एंड कंट्रोल, हम्म। ये तीन पॉइंट में अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, अटेंटिवली करते हैं, तो मुझे लगता है हर चीज आपके पोमोडोरो सिस्टम के साथ हमारा लाइफ पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो जाता है। मतलब यू बिकम मोर कूल, मच मोर कूल, एंड यू नो एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। जो हमें लगता है कि सब बिखरा हुआ है, वो बिखरा हुआ चीज समेट जाता है पूरी तरह से। मेरी ये एक्सपीरियंस है। सो लेकिन हाउ डू वी नो कि वी आर अवेयर? whatever I am doing, I should know whether it is for my good or for my bad. I mean, whether it is going to give me some positive result or not. That is important to एंड check हाउ डू first. आई नो कि रिजल्ट इज Check. पॉजिटिव और नॉट? Checking, that is a checking point ना sir. अवेयरनेस, मैं अवेयरनेस में भी, उसके पीछे भी, हर एक पॉइंट के पीछे फिर एक ही चीज रहता है कि चेक चेक चेक। चेकिंग इज अनदर मेन पॉइंट हर एक पॉइंट के पीछे। तो यस, तो जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, ऑथर ने बुक की शुरुआत इस बात से की है कि हम सबको लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, हम अवेयर हैं, थियोरेटिकली हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। उनके किसी फ्रेंड ने उनसे पूछा कि आप अपने पेरेंट्स से उनके जाने से, इस दुनिया से जाने से पहले कितनी बार और मिलोगे। हम्म। तो उन्होंने ऐसा कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने सिंपल एक मैथमेटिक्स उसमें किया कि आप अपने पेरेंट्स से कितनी बार मिलते हो साल में। उसने कहा मैं एक बार मिलता हूँ, क्योंकि अभी इस तरह के हालात हैं, हम सब ने देखे हैं, इतने दूर दूर बच्चे रहते हैं, बेंगलोर हैदराबाद या फिर बाहर ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, साल में एक बार मिलते हो, पेरेंट्स की एज है 65 अभी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लो 80 मान लो ऑन एन एवरेज, तो आप 15 बार अपने पेरेंट्स से मिलोगे बस पूरे लाइफ टाइम में। सो आर यू ओके विद दैट? तो जैसे ही उन्होंने ये पूछा तो उसकी पूरी अवेयरनेस शिफ्ट हो गई। अवेयरनेस शिफ्ट हो गई तो अटेंशन यानी अलग जगह गया फिर। तो सारा ही खेल अवेयरनेस का ही है, सब खेल उसी का ही है। फिर सर, तो पता फिर तो पता चला कि साल में 15 बार मिलना चाहिए मुझे। और भी चीज सर, ये जो आपने बोला ना, जो उसका दोस्त ने जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न इज द थिंग विच आई शुड आस्क माई सेल्फ एवरी स्टेप इन एवरी स्फीयर ऑफ माई लाइफ। Otherwise, that is the checking point only. Asking question to yourself, that is the checking point. यस What do सर। you want, what you don't want. यस। So from there, you become more aware. You become more attentive to achieve that goal. I mean, whatever you set for your future, whatever goal you set for your future, become attentive for that. And then controlling your path to achieve your goal. That is most important. हाँ, बेसिकली कंट्रोल का यहाँ पे इनका कॉन्टेक्स्ट था, कंट्रोलिंग योर टाइम, कि आप अपने टाइम को कहाँ स्पेंड करते हो, कैसे Time. करते हो, कितने लोगों के संग करते हो। और जैसे नीरज भाई ने कहा कि आप फिर तो साल में 15 बार मिल सकते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है ना, घर जाके भी आप अपने अलग रूम में जाके बैठ जाओ लैपटॉप लेके, तो घर जाके 15 बार भी आप ना मिलो, ये भी पॉसिबल है।
और बाहर रह के भी आप क्वालिटी टाइम हर दिन आधा घंटा निकाल के बात कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है। तो ये बहुत ही ट्रिकी है, उतनी लीनियर बात नहीं है। 1+1 2 है ही नहीं। अच्छा, ये रह गया ना अभी हमारा 1 वीक जंप स्टार्ट। Okay, so use the energy calendar technique for 1 week to develop an awareness of your current time uses and identify trends in activities that are creating or draining your energy. On a sheet of paper, write your energy creating activities on the left side and your energy draining activities on the right side. Below your energy creating list, write down ways that you can spend more time on these activities in the future. Below your energy draining list, write down ways that you can spend less time on these activities in the future. More attention on energy creating activities and less attention of energy draining activities will build a wealthier life. यस, तो ये वाली एक्टिविटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग वर्कशॉप में कराते हैं। प्लस माइनस, जीरो, न्यूट्रल, ऐसे भी कराते हैं। कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो आपको और ज़्यादा करने हैं, जो आपको एनर्जी गिविंग है, कौन से हैं जो आपको कम करते जाने हैं, कौन से हैं जो स्टैटिक रहेंगे। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि हाँ, आपको अपना एक टाइम ट्रैकर तो रखना ही चाहिए, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें वो उसके बिना नहीं हो सकती। जब तक आप उस पर बैठ के रिफ्लेक्शन नहीं करोगे, देखोगे नहीं कि कैसे कैसे टाइम गया और बेटर क्या हो सकता था। जैसे कल किसी से हमने ट्रैकर फिल करवाया तो उन्होंने लिखा 24 घंटे में से 4 घंटे में लिखा था मिसलेनियस फॉर एग्जाम्पल। तो अब सेम चीज़ को देख के गिल्ट भी आ सकता है कि मेरा टाइम मिसलेनियस में गया, मतलब मुझे पता नहीं कहाँ गया। और सेम चीज़ को देख के आपको लग सकता है दिस इज जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी जो चीज़ मुझे पता नहीं थी इसका मतलब ये टाइम मेरे पास है, कल तो होगा। तो ये भी बात है। जी, कुछ कह रहे थे आप अल्पना जी? राहुल हाँ जी। जी सर, ये जो लास्ट लाइन है ना, द अटेंशन ऑन एनर्जी क्रिएटिंग एक्टिविटीज एंड लेस अटेंशन ऑन एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटीज विल बिल्ड अ वेल्दियर लाइफ। यही पर वो फिर अगेन वो फंडामेंटल चेकिंग पॉइंट, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रॉम माय माइंड इट कम्स कि व्हाट डू यू वांट, वॉट एवर यू आर डूइंग उसमें से आपका आउटकम क्या होगा, उस वो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। हम्म। ये फंडामेंटल है, बेसिक फाउंडेशन क्वेश्चन है। तो उसके बाद आगे बढ़ते जाए अटेंशन के साथ। राइट। सो यू कैन यूज योर एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे और यू कैन ड्रेन योर एनर्जी। जी, बिंदर जी कुछ कह रहे थे आप? यस, टाइम ट्रैकर ये सब अच्छा है, लेकिन पता नहीं, सुनने में अच्छा लगता है बट व्हेन कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं होता है। ये ऑलवेज देखा है, क्योंकि कुछ ना कुछ अभी दूसरी मीटिंग्स है उसमें आ जाते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन है, वो सारी चीजें आ जाती है। दूसरी बात कि किसी का कॉल आ जाता है, उसमें टाइम स्पेंड चला जाता है और वो ओवर थिंकिंग में जा रहा है। इसको हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं कि 4 घंटा इसमें गया, 2 घंटा इसमें गया, और एंड ऑफ द वीक जब हम देखते हैं तो मतलब क्या ही कैलकुलेट करें, कभी कभी लगता है कुछ किया ही नहीं। ओके। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमने एजम्पशंस बना लिए हैं कि टाइम ट्रैकर मतलब क्या होगा। इसलिए हम इससे हमेशा कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली आपको फिल करना है, प्रोस्पेक्टिवली नहीं करना है। आपको टू डू लिस्ट नहीं बनाना है, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल की बात नहीं हो रही है, टाइम ट्रैकर का मतलब टाइम टेबल नहीं है और टू डू लिस्ट भी नहीं है। सिंपली जस्ट जो होता जा रहा है विदाउट एनी क्रिटिकल थिंकिंग इनिशियली टू बिगिन विद, जस्ट क्लरिकल काम करना है। बस उसमें लिखते जाइए कि मैंने इतने बजे से, आधे आधे घंटे का स्लॉट होता है उसमें फिल करते जाइए, बस ये किया है। इसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, लेकिन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ये है, और जो काम भी कर रहा है और बहुत लोगों के संग कर रहा है। तो राहुल भाई, एक तरीका तो यह है कि हम एडवांस में पूरा टाइम ट्रैकर बनाएं। हम्म। एक तरीका यह है कि हम सोने से पहले बना लें अपना जो भी आज हुआ। हम्म। तीसरा तरीका यह है कि जैसा आपने बोला कि आधा घंटा स्पेंड हुआ और उसका लिख दिया तभी।
ठीक है, तो सबके अलग अलग वे हो सकते हैं। तो अगर आप कुछ बता पाए कि कौन सा सुटेबल है ज़्यादा। हाँ। जनरली मैं कैसे करता हूँ, मैं रात को सोने से पहले थोड़ा मेडिटेशन करके हम्म। मतलब बच्चों का भी चार्ट लेके और अपना भी चार्ट किसी को, मतलब अपनी दीदी वगैरह को भेज देता हूँ। ठीक हम्म। है। हम्म। बट उसमें ये मिसलेनियस भी बहुत कुछ होता है जिसको मैं मेंशन ही नहीं करता। हम्म। तो कैन यू सजेस्ट समथिंग? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें दिस और दैट नहीं, दिस एंड दैट है। हम्म। मल्टीपल चीज़ें में एक साथ यूज़ करनी है। जैसे कि आपने इंटेंशन सेट किया कि आपको अगले दिन 4-5 काम करने हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने 4-5 टास्क आइडेंटिफाई किए, कल मुझे ये करने हैं। उसमें जैसे ये हो गया, किसी को बैंक जाना है, किसी को हो गया कि मुझे किसी बुक के लिए कोई चैप्टर लिखना है, किसी कोर्स के लिए वीडियो बनाना है। तो आपने पहले टास्क आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसका एस्टिमेटेड ड्यूरेशन निकाला कि ये कितने टाइम में हो जाएगा। आपको वो पता जरूर होना चाहिए। और ये धीरे धीरे रिफाइन होता चला जाएगा। शुरू शुरू में आप ओवर एस्टिमेट करोगे, अंडर एस्टिमेट करोगे, लेकिन धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। आपको पता चला कि 2 घंटे में हो जाएगा। अब आप फिर ये देख सकते हैं, टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं कि ये पूरे दिन में कब पॉसिबल है, कब मेरे को अनइंटरप्टेड टाइम मिलेगा जब मैं इसको शेड्यूल करूँ। कोई मॉर्निंग में 5 to 7 कर सकता है, कोई दिन में 1 to 3 PM कर सकता है। तो ऐसे हमने मेजर मेजर ब्लॉक दिन में क्रिएट कर लिए। बाकी बीच में ऐसे टाइम रहेगा, फ्री टाइम रहेगा काफ़ी। ऐसा नहीं है कि हमें हर मिनट भरना है कोई। तो वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विद कि एक भी मिनट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वी आर ऑब्सेस्ड विद द आउटकम, नॉट द आउटले। नोट द। आउटले मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि इतने घंटे इसको देना ही देना है, ऐसा नहीं है। आउटकम क्या है। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि 12:30 से 1 बजे तक पोमोडोरो सेशन होगा, तो ये टाइम ब्लॉक हो गया। इस टाइम में कुछ और नहीं कर सकता। 1 से 2 बजे रीडिंग होगा, टाइम ब्लॉक हो गया। 3 to 4 मैंने किसी को पर्सनल कोचिंग का टाइम दिया है, वो टाइम ब्लॉक हो गया। 2 to 3 का टाइम बचा मेरे पास। तो उसमें मैं, मेरे पास अब फ्रीडम है कि मैं कुछ और चीज़ के लिए भी टाइम ब्लॉक कर दूँ। तो इस तरह से दिन भर ये प्ले होता रहता है। तो जो मेजर टास्क है 4-5 वो तो हो ही जाएंगे। तो आप ये मतलब एडवांस अप्रोच है आपकी, इन हाँ। एडवांस। यस यस। हाँ, लेकिन फिर टाइम ट्रैकर में जब फाइनली फिल करते हैं, भरते हैं, वो फिर रेट्रोस्पेक्टिवली ही भरते हैं कि ऐसे 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 हुआ। उसमें फिर कुछ फार्मूला वगैरह लगा के रखिए आप। हर दिन का ये तो फिक्स रखिए, 8 घंटे से कम नहीं जाना चाहिए, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड जो भी आपका हो, आप 6 घंटे भी कर सकते हो लोअर बाउंड अपना। और जब आपका 8 घंटे हो जाए, फिर आप अपने आप को रिवॉर्ड दे दो अच्छा सा कोई। राइट। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है ये। लेकिन हाँ, अगेन अगर वन लाइन में समझना है इस बात को, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं विधि में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो विधि से ही सिद्धि होगी, है सिंपल है। विधि राइट है तो उसमें सक्सेस मिल जाएगी इजीली। ये एक्चुअली ये एक कोर प्रिंसिपल है, ये कंपास है ये भी। अगर मुझे कहीं सक्सेस नहीं मिल रही किसी बात में, तो मेरी विधि को मुझे चेक करना पड़ेगा, कोई तो स्टेप मिस हो रहा है। और बाकी हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे। क्योंकि क्या है ना कि अनस्ट्रक्चर्ड डे है हमारा पहले से बाय डिफॉल्ट। उसको हम एक स्ट्रक्चर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइंड एक रेजिस्टेंस तो करेगा ही। तो उस रेजिस्टेंस को भी हमें धीरे धीरे न्यूट्रल करते जाना है, समझाते जाना है कि कैसे करना है। लेकिन करना तो चाहिए। हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड तो मेरे ख्याल से जो हम एंट्रोपी की बात करते हैं ना, हम्म। चीजें फैली हुई हैं यूनिवर्स में, उनको हमें समेटना है। और जैसे ओपन लूप्स होते हैं ना, तो वो टाइम ट्रैकर को फिल करते करते सारे ओपन लूप्स बंद हो जाते हैं। तो आपको एक मतलब मीनिंगफुल क्लोजर मिल जाता है आपके डेज की सारी एक्टिविटीज़ को, कि आप कहाँ पर थे, कितना हो गया, आगे क्या करना है। तो बहुत सारे वो कॉग्निटिव लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बहुत उसका बेनिफिट है। राइट। तो कल से हमारा इसमें सेकंड वेल्थ शुरू होगा, सोशल वेल्थ। तो अगेन जैसे कि हमने टेम्पलेट में देखा, हर एक वेल्थ बिग क्वेश्चन से शुरू होती है। फिर उसमें उसके बाद क्या आएगा,
तो अपने आप में ये भी बड़ा चैप्टर है। फिर यूनिकली सोशल स्पीसीज, यस, सो मैनी थिंग्स। जय कृष्णमूर्ति भी जैसे कहते हैं कि द ओनली वे टू नो योर सेल्फ इज इन द कनेक्शन ऑफ अदर्स। जब आप और लोगों के संग संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तब आप जान पाते हो कि आप क्या हो। तो सोशल वेल्थ के बारे में कल बात करेंगे। और ये बुक इस तरह से लिखी हुई है कि एक लाइन बहुत ही मीनिंगफुल है, क्राफ्टेड है, मतलब क्राफ्ट किया गया है। तो उसी हम सिंसेरिटी से इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। बाकी इस जर्नी में शुरू से हमारे साथ रहे हैं, जैसे स्नेहा जी हैं, वैशाली जी, मुस्कान अभी है नहीं आज शायद, डॉक्टर ओम भी, बिनल जी भी बीच बीच में आते रहे। तो आप में से कोई शेयर करना चाहता है सो फार क्या एक्सपीरियंस रहा? स्नेहा जी अगर आप कर पाए तो आपके पास 3 मिनट्स हैं, आई नो। नहीं, टाइम वेल्थ का तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। ओवरऑल 5 वेल्थ का जो भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं, और ये टाइम वेल्थ तो खासकर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। उसके अंदर डीप 12 बाइफर्केशन, मतलब चैप्टर वाइज। जी। तो काफी कुछ ऐसे लगता है, हमें पता है टाइम तो बहुत ही ऐसे जनरल लगता है, सबको पता है हाँ टाइम बचाना है, कैसे बचाना है। बट उसको डिटेल में फर्दर बाइफर्केट करके जो अलग अलग सिस्टम्स के बारे में ऑथर ने बोला है, तो इफ वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, और जो भी अलग अलग एक्सरसाइजेस भी हैं, लाइक लेटर राइटिंग वाला था, राइटिंग लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ। तो मैंने किया, बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने एक्चुअली साथ साथ में की भी है, तो बहुत ही मजा भी आया। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में उस तरह से जानते हैं जैसे लोग विपස්සना के बारे में ये जानते हैं कि बस अपनी सांसों को देखना है। हम्म। तो ऐसे हम चीज़ों के बारे में एजम्पशंस एज्यूम करते हैं कि शायद चीज़ें ऐसे हैं। मेरे ख्याल से हम लेकिन इसलिए अज्यूम करते हैं हाँ। कि किसी भी चीज के डीप में जाने के लिए बहुत सारा डेडिकेशन और टाइम चाहिए होता है। हम्म, तो हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, चलो इतना तो हमें पता है। जी। और टाइम के ऊपर टॉपिक चल रहा है, तो अगर कल टाइम की डेफिनेशन के बारे में भी बताया जाए तो भी अच्छा रहेगा। व्हाट इज टाइम? ओके, आप बताइए। हम्म मेरे ख्याल से तो टाइम की डेफिनेशन तो नहीं, बट मेरे को जहाँ तक पता है कि टाइम इज साइक्लिक, जो मैंने कभी आपको बताया भी था। हम्म, और टाइम जो है वो रिलेटिव तो नहीं कह सकते हम, बट आइंस्टीन ने तो उसको रिलेटिव भी बोला है। मतलब अगर आप सपोज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, तो वो घंटों बैठे हो तो भी आपको कुछ नहीं लगता। और अगर आप किसी ऐसी जगह बैठे हो तो जहाँ पे बहुत गर्मी है, ठीक है, तो आपको एकदम लगेगा कि अरे भागो यहाँ से। तो अलग अलग ऑथर्स ने या अलग अलग फिलोसफीज ने उसको अलग अलग बोला है। तो वो इसके सब लिए अलग अलग तरह के सेशन करने पड़ेंगे। कुछ दिन पहले इसके बारे में, टाइम के बारे में मैं सुन रही थी, एक ऑडियो बुक पढ़ रही थी। टाइम इज वन वर्ड में बोल रही हूँ, टाइम इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट। हम्म, इट इज जस्ट कॉन्सेप्ट, इट डजंट हैव एनी एग्जिस्टेंस एक्चुअली। हम उसको कैसे यूज करें, उसको किस तरह से पिक्चराइज कर रहे हैं यहाँ। सो दैट इज द मेन थिंग। कौन टाइम इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट, दैट वाज द वन वर्ड जो मेरे दिमाग में जैसे कि किले की तरह घुस गया खट से। हम्म, क्या टाइम इज अ कॉन्सेप्ट? देन आई ट्राई टू फिर और डीप गई मैं उसके। तो जाके मैं मुझे जो फील हुआ, इट्स सो करेक्ट कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं टाइम के साथ, अरे टाइम कैसे बचाए, ये करे। अपना काम को अगर मैं ठीक कर लेती हूँ तो हम्म, वो टाइम का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। उसको बचाना या वेस्ट करना, वो मेरे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। सो अल्टीमेटली दैट वाज माय कंक्लूजन, व्हाट इज टाइम। नो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टाइम?
तो क्वेश्चन डेफिनेटली वन वर्ड मिला ना मुझे कि टाइम इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट। ओके, इस डिस्कशन के लिए हम अलग सेशन रखेंगे, ये है अलग डायरेक्शन राइट। जाएगा। यस। अच्छा, इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। या तो वी आर अप्लाइंग आइजनहोवर मैट्रिक्स हियर, वन ऑफ द सिस्टम्स टू क्रिएट टाइम वेल्थ। और एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी सब आप भाई जी की तरफ से कि जितना हो सके अगर वीडियो ऑन रखेंगे तो और भी अच्छा इंटरेक्शन में मजा आता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि कोई है नहीं, सब वॉल के साथ ये बंद खिड़की से बात कर रहे हैं। वो अच्छी फीलिंग वाला तब होता है जब वो खिड़की खुल जाता है और एक दूसरे के साथ सामने आमने सामने देखते हुए बात करते हैं तो। जी जी जी। राइट सर? बिल्कुल सही बात है ये तो। लेकिन हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन, कभी कभी है कोई ऑफिस में है, कोई घर पे और भी ज़रूरी चीज़ है तो ठीक है। लेकिन हाँ, इट इज़ डिज़ायरेबल कि वीडियो ऑन रहे तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। और इसका फ़ायदा पार्टिसिपेंट को ये है कि उसे पता नहीं होता लेकिन वो सबकॉन्शियसली ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। क्योंकि फिर उसको वो, उसे ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो मुझे देख रहा है, तो वो फोकस रहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। तो ये अच्छी बात है। और वैसे भी हमने कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी में कितनी बार ये पढ़ लिया है कि मोस्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल। और एनएलपी में भी जैसे हम कैलिब्रेट करते हैं या सेंसरी एक्टिविटी की बात करते हैं, वो देख के ही होता है कि भाई कितना समझ में आ रहा है, कहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे ये लोग बोर हो रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो देखने से पता चलता है। तो काम आसान हो जाता है वीडियो ऑन होता है तो। Your communication is effective. See, so many videos now. राइट। तो यस, द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन लाइज इन द रिस्पॉन्स वी गेट। दिस इज वन ऑफ द प्रिसपोजिशन इन एनएलपी एज वेल। ठीक है जी, बहुत अच्छा रहा। तो टाइम वेल्थ हमारा आज का कंक्लूड हो गया, कंप्लीट। सोशल वेल्थ कल से शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Sir, will you please send PPT of this the session which you have shown? पीडीएफ या पीपीटी? PDF पीडीएफ। and PPT, both PPT is possible. पीडीएफ आई विल शेयर। And PPT, can you share? पीपीटी इस ग्रुप में हम शेयर नहीं कर रहे क्योंकि वो अच्छा, ज़्यादा डिस्कस हमने की नहीं है यहाँ पे। दैट इज़ पार्ट ऑफ ग्रुप कोचिंग प्रोसेस। oh, क्योंकि इसमें बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं कोचिंग के लिए, तो वो उसके लिए okay. बनाया हुआ है। तो फिर इसमें करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस ग्रुप में क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा उनको। Hmm. तो ठीक है जी, काफ़ी लोग आज काफ़ी दिनों बाद पहली बार आए हैं, मतलब इस साल में पहली बार आए हैं। तो आते रहिए। मैं अब खुद मन में, काफी टाइम बाद आया हूँ राहुल भाई। आज मतलब अचानक से काफ़ी लोग पहली बार ही आए हैं, मतलब इस साल में तो। आई थिंक नीरज अच्छा। भाई भी शायद फर्स्ट टाइम इस साल, अल्पना जी, राजेश जी, रोहित भाई भी कल से आए हैं। टुडे इज माय सेकंड डे सर। बीच में आई थी लेकिन आई कुड हाँ, नॉट, मतलब आई मीन प्रॉपर शॉर्ट ऑफिशियल। टाइम के लिए। तो मैं ये सोच रहा था अल्पना जी डेली आ रहे हैं और मैं आज शायद बहुत दिन बाद आया हूँ। नहीं नहीं, अल्पना जी। बहुत लोग बंक मारते हैं, आप सिर्फ आप मेरे नहीं। ख्याल से काफी लोग आज आए हैं। मैं तो अचानक बैठा बस कुछ कर रहा था तो पता नहीं क्यों एकदम संकल्प आया कि आज चलो राहुल भाई से। हम्म। तो देखा टाइम भी वही मिल गया हमें। तो बहुत लोग बहुत दिनों बाद आ जाए हैं, इसलिए वी आर डिस्कसिंग थोड़ा या सोशल नहीं, वेल्थ। अच्छा। अच्छा तो लगा काफी आज। तो ये हमारी सोशल वेल्थ है। दिस इज रियली। लेकिन कई बार हम बहुत कारणों से, अजीब अजीब कारणों से अपने आप को रोक लेते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। तो वो जी। कारण मन में नहीं आने चाहिए। हम्म, तो कोई किसी को जज नहीं करता, सब फ्री हैं आराम से, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स, किसी का कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन? ये सर ये वीडियो ऑन रखने की कॉन्सेप्ट मैंने आपसे सीखी थी। और मैं जब दूसरे क्लास में भी वो लेती हूँ तो वो सबको बोल के रखती हूँ वीडियो ऑफ नहीं रखना है, तो मुझे लगेगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। मुझे मल्टीटास्किंग पसंद नहीं। कॉन्सेंट्रेट हियर, अदरवाइज डोंट सिट। आई मीन सबको डांट के बोल देती हूँ बैठो यहाँ पर चुपचाप, नहीं तो दूसरा काम करो, क्लास ही मत करो। यानी तो सर, लेकिन हाँ, यानी आप सर को बोल रहे हैं डांटो।
लेकिन जब सर डांटते नहीं है, लेकिन जब डांटते हैं आपको पता नहीं इतना स्वीटली डांटते हैं कि वो डांट समझ में आता है सर कुछ अलग से, और हम लोग हंसने शुरू कर देते हैं। सर जब डांटते तो हम हंसते हैं कि इतना मजा, मतलब अलग सा होता है वो डांट, बड़ा प्यारा होता है वो डांट। But it brings results. सर की स्माइल से भी रिजल्ट आता है तो अच्छा ही है ना। मैंने तो देखा नहीं कभी राहुल भाई, हम्म। आपने कभी डांटा होगा किसी को? पता नहीं इन्होंने कब देखा। जी, वो वाला एक दिन हम लोग सभी कोई वृशाली दीदी, मी है ना, राहुल भाई आप लोग अब हम लोग को डांट रहे हैं आज तो भाई जी, और गंभीर, बहुत गंभीर थे हम लोग, सब कोई हंस पड़े, सर भी हंस पड़े इतना जोर से। हम लोग सब खुद पूछे सर आप डांट रहे हो क्या हम लोगों को आज, मतलब इतना गंभीर होके घुसे। फिर 2 मिनट में उन्होंने हंस दिया, फिर क्या हुआ, वो डांटना कुछ भी नहीं रहा। तो सर डांटने की एक्टिंग करूं जितनी हो जाए। पर होती है नहीं होती है, डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं थैंक टाइम यू सर। वाले कॉन्सेप्ट में, 12 सिस्टम्स हमने देखे हैं, तो उस पर थोड़ी नज़र रखिए सभी। और फर्स्ट स्टेप, टाइम ट्रैकर जरूर मेंटेन करिए। ये गया तो सब कुछ गया। जैसे माला फेरते रहते हैं ना, ऐसे हमें टाइम ट्रैकर की माला फेरते रहेंगे, तो हमारा ध्यान लगा रहेगा। उसको चार्ट बोलते हैं ना। हम्म। जी। ठीक है जी, मिलते हैं फिर। बाकी तो ठीक आज है। ग्रुप कोचिंग का फर्स्ट सेशन है इवनिंग में, तो जो लोग भी ग्रुप कोचिंग का पार्ट हैं या बनने वाले हैं, दे कैन जॉइन इन द इवनिंग 8:15 PM, फर्स्ट सेशन ऑफ दिस मंथ। So see you in the evening.